Chauhan sir, good morning, sir. You may start plus, please, sir. It's 9, you may start. सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रहा है सर। अनम्यूट कीजिए, थैंक यू सर। Is it fine now? यस सर, यस सर, Yes, sir. अपने आप Yes, पता sir. नहीं कैसे म्यूट हो यस गया। सर, यस सर। Anyway, देखिए अब हम आगे शुरू करते हैं। और उस दिन हमने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात की और in that context I told you that two things are necessary for implementation of choice based credit system. One is that all universities should have semester system, and second is that all examination results should be declared in terms of grades. ये दो बातें जरूरी थी. Now today we'll talk about how grading will be done. Grading कैसे होगी, क्योंकि सबको पहले grading आनी चाहिए. And UGC has circulated a scheme of grading. It is a 9-point scheme, but the UGC has not yet given any guidelines about how grading will be done. मतलब ग्रेडिंग कैसे होगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया. ये तो बताया कि 9 प्लान ग्रेडिंग आप करिए, ABCD से लेकर ऑल दिस, लेकिन उसको कैसे करेंगे वो दैट विल परहैप्स डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी. University will decide the policy regarding how grading will be done. ऐसा लग रहा है कि वो आज हम डिस्कस करते हैं कि ग्रेडिंग क्या है और कैसे, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस of grading and what are their advantages and disadvantages, and also how they can be used and all this. इसकी हम बात करेंगे. And for that I have to share PPT because it is little technical. थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए मैं आपको वो करता हूँ, शेयर करता हूँ. Okay. लीजिए साहब, ये सबको दिखाई दे गया ना? इज इट ओके? यस सर. जी सर, जी सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम तो देख रही थे. अभी सब जो है ये म्यूट कर लें जिससे कि आवाज ना आए. So this is our today's topic, grading academic performance of students. यानी जो स्टूडेंट्स है हमारे, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस का ग्रेडिंग हम कैसे करेंगे. This is what we'll talk about today, and these are the points. We'll discuss in brief the weaknesses of traditional numerical marking system, which is being used for assess student performance so far. एक तो ब्रीफ में हम कि जो हमारा सिस्टम है चला आ रहा है उसकी वीकनेस, कमजोरियां क्या है, उसके बारे में बात करेंगे. एंड देन व्हाई एट ऑल इट इज नीडेड टू हैव एन अल्टरनेटिव अप्रोच इन दिस रिगार्ड. हमको एक अल्टरनेटिव की जरूरत हमको क्यों है, थोड़ा सा इसका बात करेंगे. एंड देन बेसिक स्टैटिस्टिकल लॉजिक अंडरलाइंग द यूज ऑफ लेटर ग्रेड्स to replace the traditional numerical marking. This is an important part of the whole discussion. क्या logic है इसके behind, statistical logic that. And then we'll talk about different methods of assigning grades and then their limitations. These are the points which we'll be discussing in detail. Now, the traditional system of evaluation that we have is based on essay type examination, under which the students are given a set of questions and they must answer those questions in terms of written communication
which may run into several pages for every question. तो ये पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं ऐसे टाइप एग्जाम से, जिसमें 8-10 क्वेश्चन दे देते हैं एंड देन वी गिव ए चॉइस, attempt any 5 or attempt any 4 or something like that. And answer to each question runs into several pages. कब चाहे 5 पेज 6 पेज में हो जाता है. And this is evaluated by an expert in the field. जो एक्सपर्ट होते हैं, जो जिनको हम एग्जामिनर कहते हैं, वो उसको इवेल्युएट करते हैं. They read those answers thoroughly and exercise the best of their judgment and award marks on each question out of the maximum marks fixed for this purpose. ये हमारा सिस्टम चला आ रहा है. And at the same time हम लोग ये भी कहते रहते हैं कि ये सिस्टम बहुत ही अनरिलायबल है, इनवैलिड भी है. इनवैलिड in the sense that marking behavior of the examiners is influenced by a few factors which are extraneous to the whole process. There are certain factors which intervene in it and which we don't want to. आवाज आ रही है भाई? म्यूट कर लीजिए अंकुश. अंकुश जी म्यूट कीजिए अपने आप को. अंकुश जी म्यूट कीजिए. हाँ लेकिन बाहर के तो बढ़िया हो, सारे बाहर के बढ़िया हो. मेरी आवाज नहीं आनी चाहिए. अंकुश जी ध्यान दें, आपका अंकुश जी म्यूट कीजिए. एक्सक्यूज मी सर, सबको म्यूट कर दीजिए सेटिंग में जाके. आप एडमिन हैं. आप कर सकते हो सर. और ज्यादा उठ जा. बहुत आवाज आ रही है. बहुत बहुत आवाज आ रही है. थोड़े होगा सर आप कर दो. क्या हालत है मेरी बात क्या चल रहा है? अंकित जी म्यूट कीजिए. अंकित, Shall I continue now? All right. I think it's okay. It's fine now. देखिए, there are a few factors. There are a few factors which influence marking behavior of examiners. निखिल जी आप फोन Sir, करके we are बता getting दीजिए, disturbed. म्यूट कर दें. कौन है ये? अंकित और दूसरा कौन है? अंकुश कुमार. मजहर सर, देखते हैं. Is it fine now? ये आवाज आ रही है, बड़ी मुश्किल होगी. चौहान सर, आप चाहें तो अंकुश को वहां से म्यूट कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें. कैसे, मुझे नहीं आता ये सब, लेकिन वही खुद भी तो कर सकते हैं म्यूट. ऐसी क्या बात है? हाँ, अब सब हो लोग गया. अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज. अब हो गया. हाँ, जिससे कि आवाज ना आए, आवाज से डिस्टर्बेंस होता है. देखिए 3 चीजें हैं. देयर आर 3 फैक्टर्स which influence the marking behavior of an examiner. For example, one is handwriting quality. अच्छी राइटिंग हो, that makes a first impression on the examiner. पहला असर इसी का पड़ता है कि बहुत अच्छा लिखा है, राइटिंग बहुत अच्छा है, and that makes a difference. उससे कभी-कभी क्या होता है कि जितना कैंडिडेट जितना डिजर्व करता है, उससे एक आध नंबर ज्यादा दे देता है एग्जामिनर. Handwriting quality, which is in fact the purpose of examination is not to assess handwriting quality, but it makes a difference, in marking behavior. Second is vocabulary of the examining. जो टेस्ट देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी vocabulary कैसी है? What kind of words does he use? किस तरह का word का इस्तेमाल करता है? There are some people who can use very impressive words because they have a strong vocabulary, and there are others who use very simple words. So like that. So vocabulary कैसी है, ये भी असर डालती है उस पर. If somebody is able to write an impressive language,
This will influence examiners' marking behavior. And then speed of writing. तीसरी चीज है, how much one can write, within the specified time. Time तो limited होता है, और उसमें कभी कभी एग्जामिनी पूरे क्वेश्चन हल नहीं कर पाता. Suppose he is supposed to answer 5 questions. Sometimes he is able to answer only 4.5. आधा क्वेश्चन छूट जाता है because time goes over. The time जब खत्म हो जाता है, इसलिए writing speed is also important. And कितना लिख के आया, आपस में बात करते हैं, मैंने इतना लिखा, बहुत सारा लिखा, all this. तो इस तरह से भी the speed of writing also makes a difference. It influences the marking behavior of an examiner. तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो टेस्ट की वैलिडिटी को कम करते हैं. तो ये हम लोग ट्रेडिशनली इसके बारे में वी आर कॉन्शियस अबाउट इट, हम जानते हैं कि ऐसा होता है. And on the basis of such an examination, which we accept that it's unreliable as well as invalid, we make certain long-term decisions about students, about their future, कि वो कहाँ जाएंगे उसके बारे में. And normally we express the final result in terms of percentage of maximum marks, and that is taken as a criterion for dividing the students in various categories. तो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम कैटेगरी बना देते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, these are categories in fact. तो ये groupings कर देते हैं उनकी हम on that basis. And mostly the examination results are reported in terms of those divisions. हम डिवीजन की फर्स्ट सेकंड डिवीजन ये जरूर लिखते हैं, फर्स्ट डिवीजन है ये जरूर लिखते हैं, ऑल दिस. तो इस तरह से दिस इज हाउ our tradition system is going on, and this is based on 101 point scale, 101 point scale from 0 to 100. That is the scale which we use for assessing the question papers, answer books of the students. And this approach is widely rejected by the experts as one of the poorest ways to express test performance. ये कहा जाता है कि ये poorest तरीका है, इससे और खराब तरीका कोई हो ही नहीं सकता. This is what our experts say, but at the same time it is being followed continuously for a long time. तो लगातार इसको फॉलो भी किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं है. Anyway, तो अब हम आगे चलते हैं. अब हम थोड़ा स्टैटिस्टिकल पार्ट पर आते हैं इसके. देखिए क्या चीज है. If we call the marks awarded by an examiner, if we call it a obtained score, अगर हम उसको obtained score कहें, the score obtained by a student, it's an obtained score, and this is in fact is not his true score. ये उसका true score नहीं है, because it has certain error. इसमें error है कुछ, and this error can be negative as well as positive, and true score is a hypothetical concept. True score हम किसी का practically measure नहीं कर सकते, not even of a iron rod by an highly accurate meter scale. अगर कोई आयरन की रॉड है हमारे पास और हमारे पास मीटर स्केल भी काफी एक्यूरेट है, तो भी हम उस आयरन रॉड की ट्रू लेंथ मेजर नहीं कर सकते. Because if the same iron rod is measured by different people using the same meter scale, it is likely that their readings will be different. Reading थोड़ी बहुत अलग हो. Maybe it's with a very small amount. भले ही variation बहुत कम हो, there will be a variation. That means hypothetical true score, which cannot be measured. Errors are of two types. दो तरह के errors हो सकते हैं. There are systematic errors
एंड रैंडम एरर। जब भी हम मेजर करते हैं तो दो तरह के एरर्स उसमें आते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज which systematically tend to make the measurements more than or less than the hypothetical true score। यानी सिस्टमेटिकली या तो वो ओवर मेजर करते हैं या अंडर मेजर करते हैं, तो उनको हम कहते हैं दीज एरर्स आर सिस्टमेटिक। जैसे मान लीजिए कोई वेइंग मशीन है जो वेट मेजर करने की होती है, एंड अगर वो मान लीजिए 1% वेट सबका वो ज्यादा देती है, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ जीरो एरर है, समथिंग है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है कि जो भी उसके ऊपर बैठेगा तो उसका वेट वो 1% ज्यादा देगी। यू नो, जिसका 50 kg होगा तो उसका वो 50.5 kg है ना, 60 kg होगा तो 60.6 kg लेगा, लाइक दैट 1%। तो दिस काइंड ऑफ एरर इज ए सिस्टमेटिक एरर, इसको सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। दिस कैन बी नेगेटिव आल्सो, देयर मे बी ए मशीन विच अंडर मेजर द वेट। तो इस तरह की जो एरर्स हैं ये मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। अदर टाइप ऑफ एरर्स आर रैंडम एरर्स which are not systematic. You know, a random error may be both negative as well as positive, and these are equally likely to occur. Equally likely to occur means इसका मतलब ये है if we take 100 measurements, it's likely that error will be negative 50% of the times and it will be positive 50%. आधे टाइम वो ज्यादा होगा, आधा टाइम मेजरमेंट कम है। तो इस तरह का मेजरमेंट जो है वो, इस तरह की जो एरर्स हैं वो रैंडम एरर कहलाती है। तो ये मान लो कोई मेजरिंग मशीन की बात करना था, अगर वो कभी कम, किसी का वो वेट कम बताए, किसी का ज्यादा बताए, यू नो, तो इस तरह की जो मशीन होगी उसको कहेंगे ये दिस हैज रैंडम एरर। रैंडम एरर्स आर not predictable but systematic errors are predictable। सिस्टमेटिक एरर आपको है तो आप बता सकते हो कि इसमें इतना एरर होगा, ये आप बता सकते हो बिकॉज यू नो इट। इस तरह से ये प्रिडिक्टेबल है। लेकिन रैंडम एरर्स के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते किधर होगी। यू कांट इवन से टेल इट्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी बिफोर मेजरमेंट। मेजरमेंट से पहले आप ये कह नहीं सकते कि एरर किधर होगा, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। ओके, दो तरह की एरर्स हैं, एंड देयरफॉर एनी ट्रू स्कोर कैन बी कंसिडर्ड एज बीइंग ऑफ टू पार्ट्स। कोई भी जो ऑब्जर्व स्कोर है, ऑब्टेंड स्कोर है या ऑब्टेंड मेजरमेंट है, उसके दो पार्ट हो सकते हैं, ट्रू पार्ट, ट्रू कंपोनेंट एंड एरर कंपोनेंट। इसमें इक्वेशन की तरह हम लिख दिया x is equal to t plus e, where x is the observed score, t is the corresponding t score, true score, and e is the error score। तो इस तरह से हमने इसको लिखा, और जैसा कि मैंने बताया ये दोनों साइड में हो सकता है। एंड दिस इक्वेशन हेल्प्स अस इन डिफाइनिंग द ट्रू स्कोर। ट्रू स्कोर को डिफाइन करने में ये हमको मदद करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ई कंपोनेंट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, एंड इट इज it's equally likely to occur both sides। 50% of the times negative होगा, 50% of positive। Now, if we take large number of observations for measuring the same thing by using the same instrument, यानी इंस्ट्रूमेंट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, जैसा कि हम आयरन रॉड की बात कर रहे थे। इफ वी हैव एन आयरन रॉड एंड इफ वी measure it 100 times by using the same measuring instrument, there will be 100 observations। 100 observation होंगी, and there will be 100 errors also। देखिए
100 ही एरर होंगी, बिकॉज ईच ऑब्जर्वेशन विल हैव एन एरर, बट सम ऑफ द एरर्स विल 50% ऑफ द एरर्स विल बी नेगेटिव और 50% विल बी पॉजिटिव. नाउ if we find the mean of those observed scores, errors will cancel out, क्योंकि एरर नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर आती है, वो कैंसिल हो जाएंगे. And therefore, average of a large number of observations may be taken to be true score. उसको हम ट्रू स्कोर मान सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रू स्कोर हाइपोथेटिकल होता है, बट दिस विल बी द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द ट्रू स्कोर. ट्रू स्कोर का जो बेस्ट एस्टिमेट है वही होगा. उस चीज को आप you measure, use the same instrument to take the same measurements again and again, बार बार आप लीजिए, then find a average निकालिए. इसीलिए देखिए होता क्या है कि केमिस्ट्री में हम लोग लैब में क्या कहते हैं कि भाई 3 रीडिंग लीजिए और तब एवरेज निकालिए. क्यों? वो इसलिए हम कहते हैं तो हम ये मानते हैं कि एरर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और जब हम मीन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, एंड द एवरेज वुड बी द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द ट्रू ऑब्जर्वेशन. इसीलिए हम कहते हैं. साइंस में ये चलता है. साइंस में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशंस जो होती है थोड़ी एक्यूरेट होती है, एंड देयरफॉर एरर्स आर लाइकली टू बी स्मॉल. साइंस में कम एरर होती है, तो उसमें हम छोटे सैंपल से काम चला लेते हैं. 3 रीडिंग से ही काम चल जाता है हमारा. एंड समटाइम्स उससे ज्यादा भी हम कहते हैं कि भाई ठीक है 5 रीडिंग लीजिए, 6 रीडिंग लीजिए, एंड देन फाइंड द एवरेज, एंड इन दैट केस इट विल बी मोर एक्यूरेट. तो वो होगा. सोशल साइंसेज में ऐसा नहीं होता. सोशल साइंसेज में क्या होता है, वी टॉक ऑफ ए लार्जर सैंपल्स. हम बड़े सैंपल की बात करते हैं, है ना. हम कहते हैं कि 200 स्टूडेंट से डेटा लीजिए या 500 से डेटा लीजिए, एंड देन फाइंड द एवरेज. तब मीन निकालिए, एंड दैट एवरेज वुड बी द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द ट्रू मेजरमेंट्स. तो ये दैट डिपेंड्स ऑन हाउ एक्यूरेट द एक्चुअल मेजरमेंट्स आर. तो ये चीज है. रैंडम एरर्स कैंसिल देमसेल्फ एंड सम टू 0. ये हम बात कर चुके हैं. वो कैंसिल हो जाती हैं और उनका रैंडम एरर्स का सम 0 होता है, बट देयर वेरिएंस इज पॉजिटिव. उनका जो वेरिएंस होता है वो पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो ये हम बता चुके. लार्ज ऑब्जर्वेशन मीन ऑफ ऑब्जर्व स्कोर इज इक्वल टू ट्रू स्कोर. ओके, दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट. अब हम देखिए, अब एक नया कॉन्सेप्ट पर आते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग. ये क्या है हम देखते हैं. इसका कॉन्सेप्ट ये, सपोज देयर इज वन आंसर बुक. एक आंसर बुक है, and this answer book is examined by the same examiner a large number of times, assuming that every time he doesn't remember the previous score awarded by him. बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना. एक ही स्क्रिप्ट है और उसको एक ही एग्जामिनर बार बार बहुत बार लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स इवेल्युएट करता है, एंड then we assume that he doesn't remember what was his previous score. पहले उसने क्या दिया था उसको याद नहीं. That means he does it independently, and then there will be and there will be a distribution of observations. उसने मान लीजिए 100 बार मेजर किया तो 100 observations हो, and standard deviation of those observations is known as the standard error of marking. देखिए इसको समझना. Standard error of marking is the standard deviation of large number of observations taken by the evaluator large number of times. बार बार इवेल्युएट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आती है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको कहेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग. ओके, एंड इन फैक्ट every specific observation
has an error component. देखिए उसमें एरर है, एक बार उसने देखा और स्कोर जो उसने दिया उसमें एरर है, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू स्कोर which is hypothetical, and this error can be negative as well as positive, दोनों possibilities. And standard error of those errors is standard error of marking, उसको हम standard error of marking कहते हैं. And marking standard of an evaluator is defined by mean and standard deviation of marks awarded by him. देखिए अब समझिए, जैसा कि मैंने बताया एक आंसर बुक बहुत बार लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स इवेल्युएट की उसने, एंड ही हैज दस लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन डिफाइन हिज मार्किंग स्टैंडर्ड. उसका मार्किंग स्टैंडर्ड जो हम मेजर करेंगे that will be measured in terms of mean scores awarded by him and standard deviation of those scores. Yeah. And this way, we can say that every examiner has his own marking standard. हर एक का अपना standard है. अगर same answer book is examined by large number of examiners, okay, again and again, यानी बहुत सारे एग्जामिनर्स ने उसको बहुत बार किया, इवेल्युएट किया, and each examiner have a different mean and different standard deviation. हर एक का एसडी भी अलग होगा, मीन भी अलग, because everybody has a different marking standard. So marking standard of every examiner can be assessed in terms of mean marks awarded by him and standard deviation of those marks. इससे हम तय करते हैं. And distribution of such marks, if observations have been taken large number of times, then distribution is supposed to be normal. तो distribution normal होगा. शर्त ये है कि many sample of observation should not be small. ऑब्जर्वेशन का जो सैंपल है वो कम नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप 10 बार मेजर करें और उसी का मीन निकाल लें. I mean that distribution will not be normal. It will be normal if you have large number of observations, maybe 500 times. Then it is likely that it will give you a distribution that will approximate normality. Normal के आसपास ये होगा. तो ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग, जिससे हम आगे अब बढ़ेंगे कि ग्रेड क्या है, उसको डिफाइन करेंगे, उसको सब करेंगे. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एंड दिस चार्ट्स वेयर जो स्टैंडर्ड एरर है मार्किंग का, इनफैक्ट इट्स सोर्स इज वेरिएशन बाय चांस. यानी जो वो क्यों है वेरिएशन, इसलिए है कि वो चांस वेरिएशन है, तो इसको हम चांस वेरिएशन मानते हैं. एंड दिस इज व्हाट सब्जेक्टिविटी मींस. हम बार बार कहते हैं ऐसे एग्जामिनेशन तो बहुत सब्जेक्टिव है. कहने का सिर्फ मतलब यही है कि इसमें चांस वेरिएशन बहुत है. इफ द सेम स्क्रिप्ट इज एग्जामिन्ड बाय several examiners or even by the same examiners again and again, there will be a variation in marks, and this variation can be attributable to chance only. ये बाई चांस ही होता है. तो ये है चीज. अब थोड़ा सा एक सिचुएशन और देखिए. A single evaluator marking a single script a large number of times and large number of evaluators evaluating a single script are assumed to be statistically equivalent processes. ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. ये कह रहा है सिंगल स्क्रिप्ट, एक ही आंसर बुक है या और एक ही स्क्रिप्ट है, ये दिस इज एग्जामिन्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ एग्जामिनर्स. ओके, and that means there will be a distribution of scores of them. In the same way,
ए लार्ज नंबर ऑफ इवेल्युएटर्स इवेल्युएट सिंगल स्क्रिप्ट, एक ही स्क्रिप्ट है उसको बहुत सारे लोग देखें तो भी उतने ही स्कोर होंगे. These two processes are statistically equivalent. That means both the processes will result in a normal distribution with the same mean and same distribution and same standard deviation. इसमें एक assumption ये है कि all the examiners have the same marking standard. सबका मार्किंग स्टैंडर्ड एक ही है. अगर सारे एग्जामिनर्स का मार्किंग स्टैंडर्ड एक ही है तो चाहे सभी एक स्क्रिप्ट को देखें बार बार या एक एग्जामिनर बहुत सारी स्क्रिप्ट को देखे, बात एक ही है. ओके, तो स्टैटिस्टिकली वो बराबर है. ये चीज आ गया. अब ग्रेडिंग की हम लॉजिक देखते हैं. देखिए साहब, हमारे यहाँ रिसर्च जो इंडिया में हुई है, रिसर्च स्टडीज कंडक्टेड इन आवर कंट्री शो दैट standard error of marking in our country is nearly 10%. And that depends on the nature of the subject. जो सब्जेक्ट थोड़े एक्यूरेट है लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस, उसमें मार्किंग माने स्टैंडर्ड एरर उसमें कम होता है. एंड देयर आर अदर सब्जेक्ट्स वेयर चांस फैक्टर प्लेज ए लार्जर रोल. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग इज लार्ज, बढ़ ज्यादा होती है. बट एवरेज इज 10%. 10% एरर होता है हमारे यहाँ मार्किंग में. तो इसका मतलब क्या है, इसको हम समझना, बिकॉज दिस इज चांस एरर. अगेन इस पॉइंट को हमें नहीं भूलना कि चांस एरर है, एरर बाय चांस. एंड दिस चांस एरर आल्सो इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है. इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट इफ a student obtains 45 marks on the SC test, यानी एक एग्जामिनर ने उसको 45 मार्क्स दिए, दिस इज नॉट हिज ट्रू स्कोर, ये ऑब्जर्व स्कोर है. तो उसका ट्रू स्कोर क्या होगा? दैट इज आवर प्रॉब्लम. व्हाट इज आई मीन व्हाट इज हिज लाइकली ट्रू स्कोर? 45 तो उसको मिला, देन his true score is likely to be anywhere between 35 and 55 because there is 10% error. 10% error है ना, तो या तो 10 पॉइंट्स ज्यादा हो सकता है ट्रू स्कोर या 10 पॉइंट्स कम हो सकता है, और इस बीच में कहीं भी उसका ट्रू स्कोर हो सकता है. दैट इज व्हाट इट मींस. इसका मतलब सीधा साधा ही है. And because and this means that any score between 35 and 55 indicates practically the same level of performance. हम ये मानते हैं because this is a range 35 to 55 in which I mean this is the range which is due to chance error, and therefore any point between these two limits indicates the same level of performance. चाहे वो 44 हो, सॉरी चाहे 36 हो और चाहे 54, एक कम एक ज्यादा या उससे बीच में कहीं भी, एनीवेयर. तो हम ये मानते हैं कि इसके बीच में कहीं भी whatever the score between them, it will indicate the same level of performance. उसको हम same level मानेंगे. क्योंकि why? Because it is by chance. हम ये मानते हैं ये चांस है ना. तो ये है मेन बात. ओके, सो नाउ वी कम टू डिफाइन द ग्रेड. अब हम ग्रेड को डिफाइन कर सकते हैं. अब हम उस पोजीशन पे पहुंच गए कि हम ग्रेड डिफाइन करें. इफ ए रेंज ऑफ स्कोर्स इंडिकेट द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एट ऑल पॉइंट्स विद इन इट. देखिए, इफ ए रेंज ऑफ स्कोर लाइक 35 to 55 हमने कहा ना लास्ट टाइम, if a range of score indicates the same level of performance at all points within it, it may be represented by a single symbol. देखिए, अगर हम ये मानते हैं कि एक रेंज के अंदर सारे पॉइंट, all points within that range, they indicate the same level of performance, तो हम उस पूरे रेंज को एक अकेले सिंबल से शो कर सकते हैं. It can be A, B, C, D, something. So this is the essential logic underlying the concept of grading. Logic ये है actually.
क्योंकि उसके बीच में सेम लेवल है, इसलिए उसको एक लेटर से शो करो. सो grade is a symbol associated with a range of scores which is supposed to represent more or less the same level of performance, providing for random errors. This is the definition of a grade. Grade की ये definition है. ये एक symbol है जो एक certain range में जो scores हैं उनके performance को indicate करता है और ये कहता है कि इस रेंज में सेम परफॉर्मेंस है, इसलिए उस एक सिंबल से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ रैंडम एरर्स. ये इसकी डेफिनेशन इसकी हुई. सो दिस इज हाउ ए ग्रेड इज डिफाइंड. ओके, सो ग्रेड कैन बी ए लेटर और इट कैन बी ए नंबर और इवन एनी सिंबल लाइक फर्स्ट डिवीजन इज ए ग्रेड and second division is also a grade. Traditionally हम follow करते आ रहे हैं. Instead of calling it ABCD, we call them first division, second division. ये है. And first division indicate a range of score between 45 and 60. 45 और 60 के बीच में जो scores है, that is first division. A single symbol जिसको हमने division बोल दिया बस. ये है आप आइडिया. आगे इसके बारे में और क्लैरिटी होगी उसमें. अब हम क्या करते हैं? When we assign grade, what we actually do? हम एक्चुअली क्या करते हैं जब हम ग्रेडिंग करते हैं? एक्चुअली हम करते क्या हैं ये हमको देखना है. While assigning grades, an attempt is made to identify relatively uniform score intervals on the measurement scale. देखिए हमारा मेजरमेंट स्केल क्या है? मोस्टली इट इज फ्रॉम 0 to 100. 0 मार्क्स और 100 मार्क्स, 100%. दिस इज अवर स्केल, 101 point scale. Now on that scale we attempt to identify relatively uniform score intervals. उस पर हम इंटरवल्स आइडेंटिफाई करते हैं. यानी कहना ये चाहिए उस पूरे स्केल्स को हम इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं इन ए हायरार्किकल ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट which indicates very poor to highest which indicates superior performance. ये है, this is what we actually do. पूरी स्केल को हम इंटरवल्स में बांटते हैं. These interval may be 5, 7, 9, any number. वो अलग बात है. एंड क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी? ईच इंटरवल इंडिकेट्स द परफॉर्मेंस लेवल लोअर देन द नेक्स्ट हायर इंटरवल एंड हायर देन द नेक्स्ट लोअर इंटरवल. ये आइडिया है. यानी हर एक इंटरवल की खासियत क्या है? वो अपने से नीचे वाले इंटरवल से तो हायर लेवल इंडिकेट करता है और अपने से ऊपर वाले से लोअर लेवल. I mean, this is what hierarchical means. Hierarchical order का मतलब यही है. Now, to each such interval, once we have identified those intervals, each such interval is as to a symbol or a letter is assigned to indicate corresponding level of performance. उसके बाद हम उनको A, B, C, D, 1, 2, 3, whatever, तो हम उनको नाम देते हैं. नोमेनक्लेचर है एक तरह से, या ये कहिए लेबलिंग है, उसकी लेबलिंग करते हैं. एंड साइजेस ऑफ इंटरवल्स विल डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग. देखिए साइज क्या होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिलायबल टेस्ट है. अगर बहुत रिलायबल टेस्ट होगा तो उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं होगा, है ना. ये है, यानी वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ. कहने का मतलब एग्जामिनर का जो वेरिएशन है वो ज्यादा नहीं. इन दैट केस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट विल बी स्मॉल, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग विल बी स्मॉल एंड साइजेस ऑफ इंटरवल्स विल आल्सो बी. तो ये है
लोअर द रिलायबिलिटी, वाइडर द इंटरवल। यानी अगर टेस्ट की रिलायबिलिटी कम होगी या वेरिएशन ज्यादा होगा तो इंटरवल्स भी बड़े होंगे ज्यादा। That depends on the reliability also. So this is what we do while assigning grades. तो ये चीज हम करते हैं। अब टेक्निक्स के बारे में देखते हैं, ये टेक्निक्स क्या है। There are two major approaches। देखिए दो अप्रोचेस हैं इसकी। There are two major approaches to assign grades। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ग्रेडिंग, सीधा, and the other is statistical grading। एंड स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग को हम ग्रेडिंग ऑन द कर्व भी कहते हैं। तो इसकी दो अप्रोचेस हैं, एक तो कहते हैं डायरेक्ट ग्रेडिंग और एक को कहते हैं स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग। और स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग को हम ग्रेडिंग ऑन द कर्व भी कहते हैं। देखिए डायरेक्ट ग्रेडिंग क्या है। एग्जामिनर इज सपोज टू रीड ईच आंसर रिटन इन द आंसर बुक, ओके, केयरफुली, and by exercising best of his judgment awards grades directly, A, B, C, D or whatever, जो भी ग्रेड है, without assigning numerical score। इसमें न्यूमेरिकल मार्क्स नहीं दिए जाते। यानी एग्जामिनर स्क्रिप्ट उठाए, पहला क्वेश्चन का आंसर पढ़े, उस पे अपना ग्रेड दे दे, A, B, C, D जो भी, नो मार्क्स। Similarly, then he reads the second question and awards grade, and third question awards grade। इससे हर सवाल पे अपना ग्रेड दे। And then these grades are converted into GPA with the help of the procedure already fixed। देखिए जैसे इग्नो में, इग्नो क्या करता है, इग्नो में यही चलता है, A, B, C, D, E, these are the 5, ये 5 ग्रेड सिस्टम इग्नो में है। और मैं समझता हूँ आप लोगों में से बहुतों में इग्नो की आंसर बुक्स आती होंगी इवेल्युएट करने के लिए। तो व्हाट दे वांट यू टू डू इज assign grades from A, B, C, D, E। यही 5 ग्रेड सिस्टम उनके है। And then award grades, read each answer and award grade on each answer separate। अगर आंसर बुक में 4 क्वेश्चंस हैं तो हर एक पे अपना ग्रेड दीजिए। And then convert these grade to GPA by the method which is already given। वो एक मेथड देते हैं कैसे करना होता है। इनफैक्ट what they do is they assign a weight of 5 to grade A, they assign a weight of 4 to grade B, 3 to grade C, 2 to grade D and 1 to grade E। ये उनका सिस्टम है, उससे वो ये चलता है। तो ये डायरेक्ट ग्रेडिंग है। अब स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग में क्या होता था। In statistical grading, the evaluator awards numerical marks first। पहले मार्क्स दिए जाते हैं on every question and then converts them into grades by using certain statistical procedures। ये है मेन बात। यानी सबसे पहले न्यूमेरिकल मार्क्स दिए जाते हैं और those numerical marks are then converted into grades by using certain set procedure। एक मेथड है और वो स्टैटिस्टिकल है, उसकी मदद से उसको कन्वर्ट कर। एंड बट बिफोर कन्वर्जन टू ग्रेड्स ऑल न्यूमेरिकल स्कोर्स आर चेंज टू कॉमन स्केल। कॉमन स्केल पे पहले बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या प्रॉब्लम है। लाइक इन ए सेकेंडरी एग्जामिनेशन देयर आर 5 सब्जेक्ट्स विच आर कंपल्सरी। सबको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। And these are evaluated by different examiners। Even a single paper, मैथमेटिक्स के पेपर्स जो है वो भी बहुत सारे एग्जामिनर्स उसको इवेल्युएट करते हैं, एक नहीं करता, क्योंकि इतने सारी कॉपियां होती हैं पूरे कंट्री की। इफ यू टॉक ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में तो बहुत सारे स्कूल हैं और एक मैथमेटिक्स का पेपर उसके भी बहुत सारे एग्जामिनर होंगे, क्योंकि एक एग्जामिनर पूरे देश की कॉपियां नहीं देख सकता। दैट मीन्स
A single paper, question paper is evaluated by a large number of marking standards. बहुत सारे मार्किंग स्टैंडर्ड्स हो गए, बहुत वेरिएशन हो गया. एंड देन द अदर पेपर इंग्लिश, उसमें भी यही प्रॉब्लम है. तीसरे थर्ड पेपर में भी यही. इस तरह से सारे पेपर्स में प्रॉब्लम. You know, once even a single student score is based on large number of marking standards, बहुत सारे पे बेस करता है, तो उसको हम डायरेक्टली अरिथमेटिकली ऐड नहीं कर सकते, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैंने कोई कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑन ए मार्किंग स्केल. आई मीन दे आर ऑन ए डिफरेंट स्केल, अलग अलग स्केल पर है, तो उन्हें ऐड नहीं कर सकते. जैसे हम मीटर्स एंड फीट को ऐड नहीं कर सकते. मैंने एक पोल है, मान लीजिए उसकी हाइट मीटर्स में दी है, दूसरे पोल की फीट में दी है, दोनों की टोटल हाइट कितनी है, हमको क्या करना पड़ेगा? हम डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते. आइदर वी हैव टू कन्वर्ट फीट टू मीटर्स एंड देन ऐड, और मीटर्स टू फीट, तब ऐड करेंगे. कॉमन स्केल का मतलब सीधा ये है, all the scripts should be converted to a same scale, then only they can be combined. तो ये चीज है. Once they are combined, then grades can be assigned by statistical methods. तब हम उसको कर सकते हैं. तो ये है इसका प्रोसीजर एक्चुअली, and this is why we convert them to common scale. तो कॉमन स्केल इसके मेथड्स हैं. There are statistical approaches to reduce a large number of scores to common scales. आप कर सकते हो. एंड आजकल कंप्यूटर के जमाने में तो ये बहुत आसान है. एक प्रोग्राम डेवलप किया जाता है और जस्ट एक बटन प्रेस करने पे ही पूरा रिजल्ट आया है. अब वो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. So this can be done. So once all the scores in all the answer books of all subjects are reduced to a common scale, then the process of grading starts. उसके बाद हम grading की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. डायरेक्ट ग्रेडिंग की तो हम बात कर चुके हैं. इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. इसमें तो यही है, examiner must read answer books and then exercise the best of his judgment and award grade directly, and by the given procedure compute GPA. इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं. And these are mostly useful in the teacher made tests. जो क्लासरूम टेस्ट होते हैं उनमें ये आसान होता है. But if greater precision is desirable, like in selection test, then these are not used. तब इनको यूज नहीं कर सकते. तो ये है. अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये आपको देखना पड़ेगा. The direct grading method is somewhat successful for teacher में, ये मैं बता चुका. Okay, we go on the next page. हाँ, दूसरा है ये डायरेक्ट ग्रेडिंग की डिस्कशन होगा. अब ग्रेडिंग ऑन द कर्व, जो न्यूमेरिकल मार्किंग है उसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट ऑल स्कोर्स इन डिफरेंट एरियाज टू ए कॉमन स्केल. एक तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा. कॉमन स्केल पे कन्वर्ट कर दिया, then we can add them directly because they are on the common scale. These can be added directly, or they can be combined by any other method depending on how much weight we want to give to each paper. हर पेपर को हम कितना वेट देना चाहते हैं उस हिसाब से हम उसको कंबाइन कर सकते हैं. And okay, thereafter the grading system starts. अब दो ग्रेडिंग के दो मेथड, एक तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, उसी के दो मेथड्स हैं. यानी स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग also has two methods, two approaches. One is absolute grading. इसमें क्या करते हैं? देखिए, अगेन पहले मार्किंग करनी पड़ेगी.
तब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड absolute grading is one such approach. When for each grade performance level is fixed in advance. इसको समझिए. When cut scores are decided in advance, पहले से ही हम तय कर लेते हैं. जैसे हम 60% पे फर्स्ट डिवीजन देते हैं, पहले से ही हमने तय कर लिया. This is absolute grading और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग. ये क्राइटेरियन रेफरेंस, इसको क्राइटेरियन रेफरेंस भी कहते हैं. तो एब्सोल्यूट ग्रेड में हम क्या करते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम कट स्कोर्स हमारे क्या होंगे. जैसे हम कहते हैं 33% से नीचे वाले को हम पास नहीं करेंगे. 33 इज फिक्स्ड एज ए पासिंग मार्क. ये फिक्स कर लिया हमने और पहले से ही फिक्स कर लिया एडवांस. हम ये नहीं देखते कि क्वेश्चन पेपर आसान था या मुश्किल था, क्योंकि उसका भी फर्क पड़ेगा. लेकिन हमने उसको, वी हैव इग्नोर्ड दैट पार्ट एंड वी हैव जस्ट फिक्स्ड अप ए कट स्कोर इन एडवांस. पहले से ही हमने तय कर लिया. इस तरह के को हम जो है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कहते हैं. ओके, इसमें कुछ नया नहीं है. आई हैव 5 grade. Okay, no problem. We have already discussed about it. अब आगे देखिए, if score distribution is normal, मान लीजिए हमने जो मार्क्स लिए हैं and we have combined marks on all subjects by using a statistical method, सबको combine कर लिया, and suppose the distribution of those scores is normal distribution है, and we have a 5-point grading system, A, B, C, D and E, 5 में. Then, because normal curve extends from -3 standard deviation units to +3 standard deviation units. ये जो नॉर्मल कर्व के बारे में जानते हैं तो उनको पता होगा कि नॉर्मल कर्व की जो थ्योरेटिकल लिमिट्स हैं, these are infinite. Normal curve extends from -infinity to +infinity. That means there is no limit. It continues, infinity. But practical limits are -3 standard deviations. यानी मीन से 3 standard deviation नीचे, below it. And similarly, 3 SDs above the mean. This makes 6 standard deviations. And that is the practical distance of a normal curve. And if you divide this distance into 5, because you want 5 grading system, then each grade covers a distance of 1.2 SD on the meter scale, or on the baseline of the curve. यानी कर्व की जो टोटल डिस्टेंस है 6 SD, उसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे आप, it will give you 1.2 standard deviation unit. And this will be the distance of each ग्रेड लेवल. हर ग्रेड लेवल की जो विड्थ होगी वो इतनी होगी, 1.2 SD. ये है. एंड सिंस द कर्व इज नॉर्मल, देन द मिडिल C, बीच का जो ग्रेड है C, दैट विल कवर 40% ऑफ द केसेस. 40% को हम C ग्रेड देंगे क्योंकि कर्व नॉर्मल है. ओके, एंड देन B and D grades will be given to 23% each. 23% ही लोग B ग्रेड में आएंगे और 23% ही नीचे D ग्रेड में आएंगे. And similarly, A and E grade, highest and the lowest, will cover 7% cases each. इसमें देखिए, इसमें एक चीज देखिए, इसमें हमने क्या किया, कट स्कोर तो पहले से हमने तय कर लिए है ना, और बाद में 40%, 23% ये अपने आप आ गया, बिकॉज कर्व इज नॉर्मल. कर्व नॉर्मल है, इसलिए परसेंटेज अपने आप खुद आ गई. इतने लोग आएंगे, ये खुद ही आ गया. एंड इफ द ग्रेड्स आर 7, अगर 7 ग्रेड है तो क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ 6 SDs विल बी डिवाइडेड बाय 7. तब हम 7 हिस्सों में बांटेंगे. And each grade level will cover a distance of 0.86 standard deviation units.
यानी if you divide 1.2 sorry 6 by 7, if you divide 6 by 7 you get 0.86, तो उतना होगा, and so on whatever the number of grades. तो ये है, देखिए ये एक स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है. This I got from a school. ये मैंने स्कूल से ही लिया था. And that school had this practice. उस स्कूल की ये प्रैक्टिस थी. You know, they had a 7-point system, 7-point grading system. A plus, A, B, C, D, E, F. This was the system. And they described their grades as excellent, very good, good, satisfactory, average, weak, and very weak. इस तरह उन्होंने इसको डिफाइन किया. And then they decided their cut score in advance. उन्होंने एडवांस में तय कर दिया कि 50% मार्क्स जिसके आएंगे, सॉरी 85% एंड अबव, उसको वो ए ग्रेड देंगे. 75 और 84 के बीच में आएंगे तो ए ग्रेड. देखिए पहले वाले को देंगे ए प्लस, 85% एंड अबव ए प्लस ग्रेड, 75 to 84% ए ग्रेड, 60 to 74% B grade, and then 50 to 59 C grade, 40 to 49 D grade, 30 to 39 E grade, and below 33 F grade. So this decision was taken in advance. ये पहले से ही तय कर लिया. तो अब जो है मार्किंग, अब देखिए अब हम देखते हैं कि how this approach is affected by marking standard of examiners. जो मार्किंग स्टैंडर्ड है उनका इस पर क्या असर पड़ेगा. देखिए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग इज अफेक्टेड बाय मार्किंग स्टैंडर्ड. अवार्ड्स ऑफ स्ट्रिक्ट मार्कर, जो एग्जामिनर स्ट्रिक्ट है, their awards result in a positively skewed distribution and larger number is awarded lower grades. देखिए इसको समझ लीजिए, अगर एग्जामिनर सख्त है तो क्या होगा, ज्यादातर लोगों के लो मार्क्स आएंगे क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है. इसलिए क्या होगा कि ज्यादातर लोग जो है बी डी ई इन ग्रेड्स में आएंगे. ए में शायद मुश्किल से ही कोई हो क्योंकि एग्जामिनर सख्त है. तो मार्किंग स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंसेस इट. सिमिलरली in the case of a lenient examination, क्या होगा, lenient examiner है तो क्या होगा, he tends to give higher marks. वो higher marks देगा ज्यादातर लोगों को. In that case, you know, grades will be concentrated. Most of the students will be concentrated on AB grades, ABC. ऊपर upper grade में ज्यादा लोग आएंगे और lower grade में कम आएंगे. तो इसकी एक तो ये जो मार्किंग जो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, जिसमें हम कट स्कोर पहले से तय कर लेते हैं, this has one serious limitation. ये serious limitation ये है that it is influenced adversely by marking standards. ये उससे influence होता है. दूसरा, ये variation से भी इस असर पड़ता है. There are some examiners who spread their awards in a narrow range. कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो 40 से कम किसी को नहीं देते और 60-65 से ज्यादा किसी को नहीं देते. ये होता है, वो अपना उसका स्टैंडर्ड है. क्योंकि उसमें क्या होगा, इन दैट केस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कंसंट्रेटेड इन द मिडिल ग्रेड्स, क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है नहीं, तो वो सारे सबके सब यू नो BCD में आ जाएंगे. ए नहीं हो, ए में भी कोई नहीं आएगा, ई में भी कोई नहीं. And in the same way, if variation is high, कुछ एग्जामिनर ऐसे हैं जो स्प्रेड करते हैं, 0 से 100 तक देते हैं, 99 भी देंगे और 2 और 3 मार्क्स भी देंगे. उसमें क्या होगा, वो वाइड रेंज में उनका जो ग्रेड्स है वो वाइड रेंज में स्प्रेड हो जाए. तो इस तरह से मार्किंग स्टैंडर्ड ऑफ एन एग्जामिनर इन्फ्लुएंसेस एब्सोल्यूट ग्रेडिंग. इसको उस पर ये असर डालता है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिलेटिव ग्रेडिंग क्या है. When examinees are evaluated by relative positions, देखिए जब रिलेटिव पोजीशन मायने रखती है, देखिए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या है,
उसमें किसी का कितना स्कोर आया या who will be placed in which grade has nothing to do with what other members in the group perform. यानी दूसरों का कैसा स्कोर है पूरे ग्रुप में, उससे कोई असर नहीं पड़ता. अगर किसी के 60 मार्क्स आ गए हैं तो उसको फर्स्ट डिवीजन दे दी जाएगी या उसको ए ग्रेड में डाल दिया जाएगा, भले ही दूसरे स्टूडेंट्स दूसरों का कुछ भी परफॉर्मेंस. लेकिन रिलेटिव ग्रेडिंग में एक दिक्कत है. रिलेटिव ग्रेडिंग डिपेंड्स ऑन हाउ ग्रुप एज ए होल हैज परफॉर्म. पूरे ग्रुप का कैसा है. देखिए जैसे रैंकिंग होती है, रैंकिंग की क्या प्रॉब्लम है. फॉर ए पर्टिकुलर स्टूडेंट, if he has performed, that is, if he has tested, just a minute. Hello, नमस्ते. अच्छा ठीक है. अच्छा मैं तो ऑनलाइन हूँ एक्चुअली. सॉरी, आई गॉट ए इंपॉर्टेंट कॉल. हाँ, मैं ये कह रहा था, इसमें क्या है कि इफ ए स्टूडेंट इज टेस्टेड विद ए पुअर ग्रुप, पूरा ग्रुप पुअर है, देन दैट स्टूडेंट विल हैव ए हायर रैंक. तो उसका हायर रैंक आ जाएगा, वॉट एवर इज स्कोर का कुछ भी हो. ऑन द अदर हैंड, इफ ही इज टेस्टेड विद ए गुड ग्रुप, अच्छे ग्रुप में है, तो उसका नीचे आ जाएगा. That means his rank or his position or his grade will depend on how other members of the groups have performed. दूसरों का परफॉर्मेंस कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा. That's why it is known as relative grading. इसीलिए relative grading इसको कहते हैं. चलिए साहब, ये तो हम वही चीज है जो हम बताना चाह रहे थे. ये है saying that Sanjay ranked first in his class means that other students obtained less marks than him. अगर हम जब कहते हैं कि रैंक 1 आया किसी का, इसका मतलब दूसरों ने उसका परफॉर्मेंस कम रहा दूसरों का. यू नो, दिस इज नॉर्म रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन. इसको हम नॉर्म रेफरेंस भी कहते हैं. इन द क्राइटेरियन रेफरेंसेस टेस्टिंग, स्टूडेंट विद 59 कैनॉट बी गिवन फर्स्ट डिवीजन. 59 आया, फर्स्ट डिवीजन उसको नहीं मिल सकता. लेकिन अगर उसका इफ ही हैज द हाईएस्ट मार्क्स, देन ही विल बी गिवन रैंक 1 इन रिलेटिव ग्रेडिंग. ये फर्क है. तो अगर उसके हाईएस्ट है तो रिलेटिव ग्रेडिंग में तो उसको रैंक 1 मिलेगा, यानी हाईएस्ट ग्रेड में प्लेस किया जाएगा उसको. और अगर उसके 59% है तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में उसको फर्स्ट डिवीजन नहीं दी जा सकती, बिकॉज कट स्कोर इज 60. तो ये सब प्रॉब्लम्स इसमें है. अब देखिए, दोनों में एक फर्क, बेसिक फर्क समझेंगे. एब्सोल्यूट ग्रेडिंग बिगिंस विद फिक्सिंग इन एडवांस द कट स्कोर्स फॉर ईच ग्रेड लेवल. माने हर ग्रेड लेवल के हम एडवांस में कट स्कोर तय करके तब हम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग शुरू करते हैं. एंड इट एंड्स विद फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ एग्जामिनीज टू बी प्लेस्ड इन ईच ग्रेड. यानी ये है, शुरू होता है किससे, पहले से फिक्स कर दिए कट स्कोर, और फॉर कितने एग्जामिनी किस ग्रेड में आए ये फाइनल हो जाता है. इसके बाद ये खत्म, एंड हो जाता है. रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है, रिलेटिव ग्रेडिंग बिगिंस विद फिक्सिंग इन एडवांस द प्रोपोर्शन और नंबर ऑफ एग्जामिनीज टू बी प्लेस्ड इन ईच ग्रेड. ये बात समझने की है. रिलेटिव ग्रेडिंग में पहले हम ये तय करते हैं हम कितने लोगों को कौन सा ग्रेड देंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी मे डिसाइड दैट वील गिव द हाईएस्ट ग्रेड टू द बेस्ट 5%. जो टॉप 5% है उनको ही हम हाईएस्ट ग्रेड देंगे. नेक्स्ट 15% को हम बी ग्रेड, दूसरा ग्रेड देंगे. उसके बाद नेक्स्ट 20% को हम सी देंगे, लाइक दैट.
if we define our grading in this term, अगर हम इस तरह तय करें तो वो रिलेटिव ग्रेडिंग है। उसमें क्या होगा, पहले हम कट स्कोर तय नहीं कर सकते, कट स्कोर तो बाद में अपने आप आएगा, यानी बेस्ट 5 जहां तक आ जाएंगे वहां हम लकीर कर देंगे, दैट इज आवर कट स्कोर। नेक्स्ट 15% या नेक्स्ट जहां तक आएंगे वहां हम लाइन खींच देंगे, दैट आवर कट स्कोर। तो कट स्कोर्स आर डिटरमिन्ड लेटर ऑन। ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इन द रिलेटिव ग्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन मे और मे नॉट बी नॉर्मल। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना जरूरी नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ द ग्रुप ऑल्सो। हाँ, इसमें आप देखिए, इसमें क्या होगा, इफ द क्वालिटी ऑफ ग्रुप इज गुड, इफ द ग्रुप टेस्ट इज ऑफ ए गुड क्वालिटी, जो क्लास है हमारी जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, अच्छे स्टूडेंट है सब, तो भी हम कुछ को ई ग्रेड दे देंगे। क्यों? बिकॉज वी हैव डिसाइडेड इन एडवांस दैट द लास्ट और द लोएस्ट 15% विल बी गिवन ई ग्रेड। ये तो हम पहले से तय कर लेते हैं ना कि ए ग्रेड कितने परसेंट को देंगे, बी ग्रेड कितने परसेंट को देंगे, सी कितने परसेंट को देंगे, एंड लास्ट में ई हम कितने परसेंट को देंगे, ये हम पहले से तय कर लेते हैं। तो अगर ग्रुप अच्छा भी है, सपोज ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप डिजर्व एन ए, अगर हमको ये लगता है कि ग्रुप इतना अच्छा है कि सबको ए मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ए सिर्फ टॉप 5% को मिलेगा बिकॉज वी हैव डिसाइडेड इट, और मैंने लास्ट जो सबसे नीचे वाले होंगे, ऑल्दो दे आर आल्सो ए ग्रेडर्स, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ई ग्रेड मिल जाएगा। इसमें ये प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर कोई ग्रुप बहुत खराब है, द ग्रुप इज नॉट गुड, पुअर ग्रुप, even then some students will get A because we have decided that we give A to the best 5%, तो उसको हम A दे देंगे फिर भी। तो this is their weakness। तो ये इसकी सिस्टम की कमजोरियां हैं। ये इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए ये है, ये तो हमने लास्ट टाइम दिखा दिया था आपको। This is the system of grades which is suggested by the University Commission used as a part of CBCS। तो इसको अब ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा इसके इश्यूज के बारे में बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है ग्रेडिंग में। और 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग की हमने बात की, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड रिलेटिव ग्रेडिंग। दोनों ही में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। There is always a chance of misclassification in the neighborhood of the cut points। जहां कट पॉइंट्स होंगे वहां चांस है कि मिसक्लासिफिकेशन हो जाए, यानी जिसको ए ग्रेड, the one who deserves A grade may be classified in B grade। ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ वेरिएशन। सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है, जिसको बी ग्रेड मिलना चाहिए वो ए में आ जाएगा। देयर इज अ चांस, देयर इज ऑलवेज अ चांस, एंड दिस चांस इंक्रीजेस विद वेरिएबिलिटी, है ना, एंड डिक्रीज्ड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कम है तो ये चांस और बढ़ जाएगा। इसमें मिस क्लासिफिकेशन की पॉसिबिलिटी है। एक चीज तो ये इसकी प्रॉब्लम है, ये दिस इज अ सीरियस लिमिटेशन of grading system। Then there is a grading system puts poor students to advantage। एक ये प्रॉब्लम है, it puts poor students to advantage and abler ones to disadvantage। यानी जो poor students होते हैं उनको इससे फायदा होता है। क्यों? Because they are clubbed with good students। जैसे suppose the range is 45 to 50, 45 to 60, that is the range of B grade for example। तो क्या होगा, जिसके 46 आएंगे या इवन 45,
वो और 59 के बराबर हो जाएगा, ऑल्दो देयर इज ए डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस है दोनों। अब क्योंकि हमने रेंज तय कर लिया है तो उस सब में तो ये होता है, इसमें थोड़ा देयर इज अ चांस दैट पुअर स्टूडेंट्स गेट एन एडवांटेज। इन द सेम वे जो अच्छे हैं उनको डिसएडवांटेज होगा, उनको जो है दोज विल बी क्लब्ड विद द पुअरर वंस। तो ये इसकी लिमिटेशन है, एंड दिस लिमिटेशन इज अ सीरियस वन। ओके, क्या हो गया, कैसे हमने ओके इसकी अब थोड़ी सी और इश्यूज हैं। देखिए, grades cannot be used directly for the purpose of selection and placement. जब भी हमें सिलेक्शन या प्लेसमेंट डिसीजन लेने होते हैं तो हम ग्रेडिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इज लिमिटेड। मान लीजिए हमको एडमिशन करना है अपनी फैकल्टी में, एंड वी हैव ओनली 20 सीट्स, and we invite applications, and maybe more than 100% of A graders, A grade वाले 100 लोग हैं, then how do we select the best 20 out of these 100 on the basis of grades alone, unless we convert those grades into numerical terms? वो अलग बात है, लेकिन ग्रेड्स के बेसिस पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली वी हैव कम डाउन टू द न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल स्कोर। किस तरह से उसको हमने चाहे जीपीए में कन्वर्ट करें, जो भी करें, लेकिन उस पर्पस को हम डायरेक्टली ग्रेड को यूज नहीं करते। वैसे कहा यह जाता है कि भाई ग्रेडिंग इज मोर रिलायबल देन न्यूमेरिकल मार्किंग। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अनरिलायबिलिटी को उसमें क्लब कर देते हैं, इसे टेक्निकल मैटर। तो ये कोई इस तरह की चीज नहीं है। हाँ, यही हम बात कर रहे थे, सीधा हमने, अच्छा इसमें क्या करते हैं कि अल्टीमेटली हमें, जैसा कि हमने बताया, न्यूमेरिकल में ही आना पड़ता है, न्यूमेरिकल स्कोर में ही इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड देन ओनली यूज। एंड उसमें दो कभी कभी हम दोनों अप्रोचेज इस्तेमाल करते हैं। while making selections we fix up a qualifying mark score। हम क्वालिफाइंग स्कोर भी तय करते हैं कि भाई 50% मार्क्स से कम जिसके आएंगे उसको तो हम लेंगे ही नहीं, दिस इज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। वो क्या हुआ, दिस इज एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन। वो एब्सोल्यूट है क्योंकि हमने एडवांस में तय कर दिया कट्स को, तो वो एब्सोल्यूट हो गया। एंड देन out of all those who qualify that minimum cut score, then for selection we develop a merit। फिर मेरिट बनती है, फिर हम रैंकिंग देखते हैं, उसके वहां पे रिलेटिव ग्रेडिंग हो जाती है। तो हम एब्सोल्यूट और ग्रेडिंग दोनों को मिलाकर कभी कभी अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो ये भी होता है। और आजकल जो बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो तो परसेंटाइल रैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। परसेंटाइल रैंक इज ए रिलेटिव इंटरप्रिटेशन, रिलेटिव यूज, वो रिलेटिव पर डिपेंड करता है। वो स्कोर पर डिपेंड, कितना स्कोर आया ये मायने नहीं रखता, कहां आपकी पोजीशन है वो मायने रखता। वेयर आर यू एज फार एज योर ग्रुप इज कंसर्न। तो इस तरह से पर्सनल रैंक आर मोस्टली यूज्ड इन सिलेक्शन डिसीजंस। ज्यादातर जो सिलेक्शन डिसीजन है उनमें ये इस्तेमाल। एनीवे, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेडिंग सिस्टम। और अभी तो हमारे पास टाइम बचा है, अब आप अपने सवाल चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की, है ना। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो जो अभी आपको क्वेश्चंस हो तो थोड़ा सा मैं
इसमें आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो इसकी जो दो अप्रोचेस हैं हमने आपके सामने डिस्कस की, और यही है। अब मोर ओवर व्हाट पॉलिसी विल बी यूज्ड विल डिपेंड ऑन ए इंस्टीट्यूशन तय करेगा उसको कैसे करना है ग्रेडिंग, एंड यूजीसी हैज नॉट येट सजेस्टेड एनी ऑफ दीज अप्रोचेस। यूजीसी ने अब तक नहीं कहा आप ये फॉलो करिए या वो फॉलो करिए। यूजीसी ने सिर्फ ये कहा कि 9 पॉइंट ग्रेडिंग आप इस्तेमाल करिए, एंड देन यूज सच एन those grades in CBCS सिस्टम, यानी जो जीपीए निकालने के लिए उसको इस्तेमाल करना है जो यूजीसी की स्कीम है। लेकिन ग्रेडिंग कैसे होगी दैट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन, मे बी बाय द इंस्टीट्यूशंस, और मे बी लेटर ऑन यूजीसी गिव सम स्कीम। यूजीसी कोई स्कीम दे बाद में कि भाई ऐसे आप ग्रेडिंग करिए, ये भी हो सकता है। सो दिस इज आपका ये है साहब। अब आप चाहे तो अगर आपको लग रहा है कोई सवाल आपके दिमाग में है तो मैं उसकी आंसर देने की कोशिश कर सकता हूँ। यू कैन ट्राई। जी सर। मैं पूछूं एक सवाल? बताएं जी, मेरा नाम निखिल आनंद गिरी है सर, और ओके। ये आपने बताया जो ट्रेडिशनल जो मेथड है एग्जामिनेशन का, वो तो स्कूल लेवल से फॉलो होता है, तो मतलब आपकी राय में क्या है, मतलब उसको हम एलिमेंट्री लेवल से ही चेंज करना चाहिए उसको, सो दैट देखिए धीरे धीरे सब चेंज होगा। एनईपी तो कह रही है कि स्कूल से ही चेंज करना शुरू करिए, एंड फॉर्मेटिव पार्ट शुड बी मोर देन दी सबमिटिव पार्ट। अब तो ये कह रहे हैं कि आप जो इंटरनल, जिसको हम ट्रेडिशनली इंटरनल इवेल्यूशन कहते आ रहे हैं ना, इवेल्यूशन डन बाय द टीचर हु टीचेस, अब तो ये कहते हैं जब टीचर का पढ़ाना उसका ड्यूटी है। नाउ अभी कहते हैं इफ टीचिंग इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर देन असेसमेंट इज हिज राइट। असेसमेंट उसका हक है, क्योंकि पढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है, तो असेसमेंट उसका हक है, तो इसलिए वो करे, है ना। तो ज्यादा वेट अब जो है फॉर्मेटिव का हो। एंड पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव, देखिए दो तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सबमेटिव इवेल्युएशन। ये भी आपने सुना होगा, दो अप्रोचेज है। सबमेटिव इवेल्युएशन इज कंडक्टेड आफ्टर एंड ऑफ द टर्म, जब पूरा टर्म खत्म हो जाए, जिसको हम आजकल ना एनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन कहते हैं, दैट इज सबमेटिव। एंड द पर्पस ऑफ दैट इवेल्युएशन इज अवार्ड ऑफ डिग्री और इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। स्कूल लेवल पे हम सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पे हम डिग्री वगैरह देते हैं। तो उसका पर्पस तो ये होता है कि हम ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस असेस करें आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म, एंड देन अवार्ड हिम ए सर्टिफिकेट सो दैट ही कैन गो टू द मार्केट फॉर ए जॉब। ये तो सबमेटिव का मतलब है। बट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इट्स मेंट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फॉर्मेटिव का मतलब है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंप्रूव करें, इट्स ए काइंड ऑफ, इसमें फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर का मकसद ये होना चाहिए कि एज ही इज टीचिंग ही शुड कंटिन्यू टू एंश्योर वेदर स्टूडेंट्स आर गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग, यानी मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको स्टूडेंट समझ रहे हैं या नहीं, ये उसको साथ साथ इंश्योर करना चाहिए, उसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। फीडबैक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक से ये पता चलता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। टीचर कैन यूज फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मेथड, उसके मेथड ऑफ टीचिंग को सुधारने में भी वो यूज कर सकता है, और इवन ही कैन इट कैन बी हेल्पफुल इन assessing the curriculum। कभी कभी ऐसा भी होता है कि करिकुलम हम कोई ऐसी चीजें डाल देते हैं जो स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट एप्रोप्रिएट। कभी कभी ऐसी चीज होती है, कम ऐसी चीजें जो स्टूडेंट का लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसके लायक वो चीजें नहीं है, तो ये भी फीडबैक से पता चल जाता। टीचर्स
And on the basis of feedback received from students, teacher can not only improve his method of teaching, but also bring about changes in its curriculum. तो करिकुलम को भी बदल सकता है। तो इसलिए इसके लिए तो भाई फ्रीडम चाहिए ना, ऑटोनॉमी चाहिए टीचर को कि वो जब चाहे जब अपना बदल दे, जो कि एक्चुअली है नहीं। आजकल है क्या कि ये जो हमारा एफिलिएटिंग सिस्टम है, इसमें एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड, सब कुछ सेंट्रल में यूनिवर्सिटी में तय होता है। एक बार डिसाइड हो गया तो सालों तक उसका रिवीजन नहीं होता है। बोर्ड और गवर्नर और दुनिया भर की चीजें, बिकॉज ऑफ साइज, बिकॉज हमारा साइज बहुत बड़ा है सिस्टम का, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। अब एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि सर थोड़ा, दिस इज रमेश चंद्र यादव सर, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, बैसवाड़ा कॉलेज, लालगंज, रायबरेली। सर एक जिज्ञासा थी, आपने प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भी कहा, सिलेक्शन के बारे में, ग्रेडिंग सिस्टम और इन सब का। सर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक स्केलिंग लगती थी, तो उसमें कभी कभी ये बताया जाता था कि जिसके कम नंबर हैं ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा वाले के कम हो जाते हैं। तो सर ग्रेडिंग और स्केलिंग में क्या फर्क है, ये कैसे काम करता है सर? स्केलिंग मैंने बताया ना, देखिए स्केलिंग तो सबके स्कोर्स को कॉमन उस पे लाओ, कॉमन स्केल पे। जैसे कि मैंने बताया ना कि फीट को मीटर में बदलिए, है ना, मीटर को फीट में बदलिए, देन ओनली यू कैन ऐड देम, और ये हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये हम लोग कर चुके हैं अपने आप पहले, अब तो चीजें अलग तरीके से हो गई। होता क्या था कि बिगिनिंग में हम देखते थे कि जब हम लोग एडमिशन करते थे, जब तक टेस्ट नहीं होता था, लॉन्ग बैक टेस्ट नहीं करते थे एडमिशन के लिए, एंड वी मेड एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, जो भी बोर्ड मार्क्स देते थे। तो स्टेट वाइज बहुत वेरिएशन होता था। कुछ स्टेट के स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत हाई होते थे, कुछ स्टेट्स के मार्क्स लो होते थे कंपैरेटिवली, कुछ बोर्ड्स जो थे उनके मार्क्स हाई होते थे, कुछ बोर्ड्स के मार्क्स लो होते थे। तो ये चीज थी, हम देखते थे कि यूपी बोर्ड के मार्क्स जो है बहुत कम है, और किसी दूसरे कई बोर्ड थे उनके मार्क्स बहुत हाई होते। इन दैट केस, उस केस में हमको ये करना पड़ता था कि उनको कॉमन स्केल पर लाए। तब हम करते क्या थे, सबका एवरेज निकाल, जितने भी एप्लीकेंट होते थे ना, उनकी परसेंटेज का एवरेज निकालते थे, मीन, और फिर स्टेट वाइज मीन निकालते थे। देखिए सबका मीन भी निकालते थे, स्टेट वाइज मीन निकालते थे। जिस स्टेट का मीन ज्यादा होता था ओवरऑल से, ठीक है, उसके हर स्टूडेंट के मार्क्स उतने घटा दिए जाते थे जितना एवरेज में डिफरेंस होता। दैट वाज द लॉजिक। तो तब वो कम हो जाएगा, जिसके ज्यादा उसके कम हो जाएंगे ना, क्योंकि एवरेज से बहुत ज्यादा है उसके। तो इस तरह से होता है, हो सकता है वहां यही इस तरह की टेक्निक अपनाई जाती है। सर हमारे यहाँ सर लोक सेवा आयोग में जैसे प्रीलिम्स होता था, मेंस होता था और इंटरव्यू, 3 स्तरीय एग्जाम होता है। तो इस पे सर दर्जनों मुकदमे हाई कोर्ट्स में हुए थे, और इवन की जजेस के स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते थे पेपर में, तो वो कहते थे इतनी रहस्यमयी चीज है स्केलिंग, ये कोई स्टैटिक्स वाला प्रोफेसर भी नहीं समझा पा रहा है। और ये पता चला अब सर 1 नंबर पॉइंट में सिलेक्शन रुकते थे, किसी बच्चे का कम हो वो ज्यादा हो जाता था। तो सर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं, चूंकि मेंस में तो लिखित का नंबर मिलता था सबका, उसके बेसिस पे कैसे लगाते थे, कहाँ कम कब कर देते थे, कब ज्यादा कर दे, ये बड़ा अनडिफाइंड सा था। कभी न कभी शायद प्रोसीजर में कोई कमी होगी, फुल प्रूफ नहीं होगा। अदरवाइज आजकल तो ये सब पॉसिबल है कि सारे मार्क्स को आप एक स्केल पर ला सकते हो, उसमें कहीं कोई। देखिए टेस्ट तो इसीलिए किए जाते हैं, एडमिशन टेस्ट जो और कॉम्पिटिटिव टेस्ट, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स के मार्क्स क्योंकि कंपेरेबल नहीं होते, इसलिए टेस्ट होता है। अदरवाइज क्या जरूरत है, अगर सबके कंपेरेबल होते, है ना, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश, अगर सबके कंपेरेबल होते ना, सेम लेवल होता, तो किसी कंपटीशन की जरूरत कहाँ थी, फिर तो उन्हीं के बेसिस पे हो जाता एडमिशन। तो जॉब के लिए और एडमिशन के लिए जो कंपटीशन टेस्ट दिए जाते हैं ना,
उसका एक वन ऑफ द पर्पसेस, एक पर्पस ये भी है कि एक वजह ये भी है कि मार्क्स कंपेरेबल नहीं है, उनको कंपेरेबल बनाने के लिए वो लोग करते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि सबको एक स्केल पे मेजर करें, क्योंकि यू कैन कंपेयर ओनली इक्वल्स, कहते हैं ना, जो बराबर हो उन्हीं को आप कंपेयर कर सकते हो। जी सर। सेम एज के बच्चों को ले तब उनकी हाइट कंपेयर करें, वो मीनिंगफुल है। और अगर 5 साल के बच्चे के और 12 साल के बच्चे का हाइट कहेंगे ये लंबा है इतना, इलॉजिकल है। 5 साल के 2 बच्चे और उनकी हाइट में फर्क है तो आप कह सकते हो हाँ भाई फर्क। इसलिए इनिशियली इक्वल हो तब आप उनको और चीजों पे कंपेयर करिए। तो ये सब चीजें, ये मेजरमेंट की थ्योरीज है। तो इसमें देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। मेरा एक प्रश्न है सर, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया, सीजीपीए को सर प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? ना, जीपीए प्रतिशत में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब परसेंटेज बता सकते हो कितना प्रतिशत तक? परसेंटाइल अलग चीज है। परसेंटाइल तो सीधा उसको तो स्टैटिस्टिकली एक ही फार्मूला है, कन्वर्ट हो जाता है। वो तो जो रॉ मार्क्स होते हैं ना, रॉ मार्क्स जिन्हें हम कहते हैं, उन्हीं को सीधे आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे किसी का 7 पॉइंट सीजीपीए है सर, तो वो कितने प्रतिशत पाया है? परसेंटेज यदि जानना। ना ये तो आए नहीं, क्योंकि हुआ क्या है, तो पहले ग्रेड में कन्वर्ट हो गया ना, वो जो उसके रॉ मार्क्स है वो तो पहले ग्रेड में चले कन्वर्ट हो गए, और ग्रेड से फिर जीपीए आया, है ना। तो जीपीए को आप डायरेक्ट उसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते, रॉ में वो नहीं होगा। ये है, वो तो हो ही नहीं। वो तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आपने जीपीए में कन्वर्ट कर दिया, ये है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मैं प्रदीप सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज मछलीवाड़ा पंजाब से। ओके। तो सर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में जो है वो ग्रेड सिस्टम अच्छा है या मार्क सिस्टम अच्छा है? हाँ, ये बड़ा वैसा सवाल है एक्चुअली, क्योंकि ग्रेड तो ग्रेडिंग सिस्टम तो मार्क्स से भी कन्वर्ट होता है ना। पहले तो इनिशियली तो मार्किंग ही करनी पड़ेगी शायद। सीधा ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा रीजनेबल नहीं है। होता क्या है कि सीधा ग्रेडिंग सिस्टम करेंगे तो एग्जामिनर भी तो बहुत सारे होंगे ना, तो सबका, क्योंकि जो डिफरेंस इन स्टैंडर्ड है वो तो उसमें भी आ जाएगा। जो मार्किंग स्टैंडर्ड में जो जजमेंट का स्टैंडर्ड है आदमी का, जो जजमेंट का लेवल है, वो तो उसकी ग्रेडिंग में भी आ जाएगा। इसलिए यह है कि न्यूमेरिकल मार्किंग हो और फिर उसको रिलेटिव उसमें कन्वर्ट किया जाए। और इसमें मैं ये देखता हूँ रैंक, ये जो परसेंटाइल रैंक है ना, ये सबसे ठीक है। इसमें क्या है कि रैंकिंग होती है, मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, मार्क्स जितने भी हो किसी के, वो अगर बेस्ट है नंबर अपने रैंक पे, उतना ही रैंक उसका आएगा, ये ठीक। लेकिन उस रैंकिंग में भी ये जरूरी है कि इनिशियल स्कोर जो है वो सेम स्टैंडर्ड पे हो, ये बहुत जरूरी। अदरवाइज वो नहीं करेंगे तो फिर उसमें सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इनिशियली सबकी जो स्कोरिंग है, जो इनिशियल मार्किंग है, वो सेम स्टैंडर्ड की हो, यूनिफॉर्म उस पर हो, स्केल पर सेम, ये जरूरी है। तो अब तो सवाल ये उठ रहे हैं कि एग्जामिनेशन ही बंद कर देना चाहिए, स्कूल्स में तो लगभग बंद ही हो रहा है। तो चीजें तो ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा अगर नंबर हो ना तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है, हमारे यहाँ एनरोलमेंट इतना है हर लेवल पर, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आपको मालूम है एनरोलमेंट हमारे यहाँ हायर एजुकेशन की बात बता रहा हूँ मैं, दुनिया में सबसे ज्यादा है। हालांकि हमारा सिस्टम इतना बड़ा नहीं है, अमेरिका में सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम है ना, और चाइना में दूसरे नंबर का सिस्टम है, ये बताते हैं। लेकिन एनरोलमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सिस्टम हमारा, 4 करोड़ से ज्यादा हमारे यहाँ स्टूडेंट है हायर एजुकेशन में। सिर्फ कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है इतनी, आप समझिए, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ है, उतने तो हमारे यहाँ स्टूडेंट है हायर एजुकेशन के, है ना। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 1.5 गुना है। 200 देश दुनिया में ऐसे हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन हमारे हायर एजुकेशन एनरोलमेंट से कम है। तो साइज इतना बड़ा है हमारे सिस्टम का
उसमें फिर ये है कि साइज के हिसाब से समस्याएं भी उतनी बड़ी हैं, है ना। तो सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन में हमारे टाइम भी लगता है और जल्दी नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये है प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी इवन देन वी आर डूइंग वेल। फिर ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत पिछड़े हुए हों दूसरों से। चलिए साहब, दैट्स नाइस है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सर। थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you now. थैंक यू सर। All right. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Okay.